Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, everybody.
Thank you Hare again. Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Today I'll take this opportunity to sing the Jai Radha Madhav. Please bear with me. My voice is not so good, but I'll try to please you and Laura. Hare Krishna. Ready? Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraj Jana Ranjana Yashodanandana Vrajjana Ranjana Yashodanandana Vraj Jana Ranjana Yashodanandana Vrajjana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Janavallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraj Jana Ranjana Yashodanandana Vrajjana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna everyone. Hare Krishna प्रभु। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। आप सब लोग अपना टाइम निकाल के, कीमती समय निकाल के इस क्लास के लिए आए, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करेंगे, रिवीजन करेंगे, जस्ट थोड़ी सी की आइडिया लग जाए क्या हम बात कर रहे थे। कुछ हफ्तों से देखिए हम बात कर रहे थे कर्मों के बारे में कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या होता है। हमने बात किया था कोई भी इन जनरल कोई भी हम चीज करते हैं तो उसको कर्म कहते हैं, लेकिन एक्चुअली शास्त्रों के हिसाब से जो कर्म होता है वो होता है जो हम अपने शास्त्रों के हिसाब से करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। फिर विकर्म वो होते हैं जो हम गलत काम करते हैं, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन करी थी। और फिर अकर्म वो होते हैं जो ऐसे कर्म करें कि काम तो हम कर रहे हैं लेकिन उसके कर्म नहीं आते। जैसे मैंने बताया था कि अर्जुन जो है वो भी लड़ रहा है और दुर्योधन जो है वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि वो भगवान के लिए लड़ रहे हैं अर्जुन, इसलिए उनके कोई कर्म नहीं आ रहे, उनका रिएक्शन नहीं आ रहा, उसका जो रिजल्ट है। और जो दुर्योधन है उसके रिएक्शन आ रहे हैं। और फिर किसी ने डिस्कस किया था रिएक्शन ना आना मतलब क्या। रिएक्शन ना आना मतलब मटेरियल रिएक्शन। रिएक्शन तो आएगा कि आप क्या, आप भगवत धाम जाएंगे, भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, लेकिन ये होगा इसका रिएक्शन। मटेरियल रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि नहीं आता। फिर हमने बात करी थी, कई लोगों ने ये क्लास मिस कर दी थी, ऑल्दो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन फिर हम 19 और 20वें पे हमने बात करी थी जहां पे भगवान बोल रहे हैं कि जिसको ये ज्ञान हो जाएगा उसके जो रिएक्शंस हैं, एक्शंस के जो रिएक्शंस हैं वो सब जल के राख हो जाएंगे। तो हमने बात करी थी कि ज्ञान से क्या मतलब है, क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है, जैसे हर एक को अपने अपनी बॉडी के बारे में पता है। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं कुछ गलत चीज खाऊंगा तो मेरे को प्रॉब्लम होने वाली है, तो मुझे ज्ञान है। तो वैसे ही जब हमें ये भगवान के बारे में ज्ञान हो जाता है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की साइंस है उसके बारे में ज्ञान हो जाता है, तब जो है हमारे जो रिएक्शंस हैं वो
जल जाते हैं, क्योंकि भक्ति, जब हम भक्ति करने लगते हैं, हर चीज भगवान के लिए करने लगते हैं, तो पीछे जितने भी हमने बुरे कर्म किए या इवन अच्छे कर्म किए, वो सब जल के राख हो जाएंगे। और एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे कि कई कोई ये बोल सकता है कि बुरे तो चलो खत्म हुए, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे क्यों? क्योंकि अच्छे भी अगर आप देखिए, अगर हम अच्छे कर्म भी करते हैं तो जन्म तो फिर लेना पड़ेगा, और जन्म लेना पड़ेगा तो तकलीफ तो होगी, है ना। और अगर आप क्यों ना कितने भी अमीर हो, लेकिन जब जब मृत्यु होगी तो दुख दर्द भी होगा और दुख भी होता है लोगों को। तो फिर तो इसलिए ये भक्ति करने से सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और आप फिर सीधा जो है भगवान के पास जाएंगे। हमने 19 में ये किया था, और 20 में हमने ये किया था कि भगवान बता रहे हैं कि वो रिजल्ट से जो है डिटैच हो जाता है और वो सेटिस्फाइड रहता है। सेटिस्फाइड क्यों रहता है? क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है। और मैंने बताया था कि जब भगवान के लिए कार्य करता है तो वो अटैच नहीं होता अपनी चीजों से। क्यों? जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप बैंकर हैं और किसी ने बैंक में 10 लाख डाले या 10 लाख निकाले, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि आप तो सिर्फ बैंकर है, एक बैंक के लिए काम कर रहे हैं। तो वैसे ही जो आदमी इस स्थिति, इस चेतना में काम करता है कि मैं सिर्फ भगवान के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो जो चीज, इन चीजों से ना उसे दुख तकलीफ देता है, ना सुख में वो बहुत ज्यादा सुख हो जाता है। एक्चुअली आपने कभी देखा है कि कई लोग इतने कभी कभी एक्साइटेड हो जाते हैं सुख में कि वो भी नुकसान देता है। जैसे मैंने देखा है, मतलब मैंने लाइव मैच तो नहीं देखा, लेकिन कई बार न्यूज में सुना है कि कई बार फुटबॉल में, सॉकर में कभी कभी कोई टीम जीतती है तो वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। अब बताइए ये भी किस तरह का सुख है? और दुख में भी कई लोग इतना दुख हो जाते हैं, इतना दुख हो जाते हैं कि छलांग लगा लेते हैं। जैसे मुझे याद नहीं आ रहा वेदर मैंने इस क्लास में बताया था या एक और क्लास में हम बात कर रहे थे कि कोविड के टाइम पे, आप आई एम श्योर आप लोग सब जानते होंगे, इंडिया में ये बड़ा केस चला था कि कोविड के टाइम पे एक फैमिली थी जो बड़ी अच्छी फैमिली थी, अमीर फैमिली थी, लेकिन उसका इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ अपने फाइनेंशियल उसमें, कि पहले उसने अपने माँ को मार दिया, अपने पिताजी को मार दिया, अपने बच्चों को मार दिया, अपनी बीवी को मार दिया और खुद भी अपने आप को गोली मार दी। और जब पुलिस ने चेक किया कि ये हुआ क्यों, तो उन्होंने देखा कि उसके पास तो काफी पैसा था उसके बैंक में, लेकिन जो दुख था, जो मतलब जो जो लॉसेस हुए उससे, और वो उस लॉस के थ्रू कभी जा नहीं पाया, तो इसकी वजह से वो दुख नहीं सह पाया और उसने अपने आप को मार दिया। तो इसलिए देखिए ये मैं दूसरी क्लास में भी बता रहा था कि ये भगवान ने जो चैप्टर का नाम दिया ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो हमें जब ज्ञान हो जाएगा कि हम कौन हैं, हमारा भगवान के साथ क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम सुख से क्यों गुजर रहे हैं, दुख से क्यों गुजर रहे हैं, तब जो है आदमी जो है इन चीजों से ऊपर आ सकता है। जैसे हमने पिछली क्लास में प्रभु जी बता रहे थे कि अब जब उनको दुख आते हैं तो वो थोड़ा बहुत जो है संभाल पाते हैं स्थिति को। तो धीरे 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 जो है ज्ञान से हम ऐसी चीजों से बाहर आ सकते हैं। तो ये तो जब आदमी सिर्फ भगवान के लिए कार्य करता है डिटैच होके, तब फिर ऐसे दुख और सुखों से उसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आज चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और हमने पिछली बार जो है रक्षाबंधन के ऊपर भी बात करी थी, बहुत अच्छी क्लास हुई, काफी लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस भी दी, आप लोग वो क्लास सुन सकते हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। अब चलिए आज हम 21 से शुरू करेंगे। एक थोड़ी सी रिवीजन हो गई आप लोगों के लिए। अब देखिए, निराशीर्यता चितात्मा त्वक्ता सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वान् आपनोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप में संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे समवित को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। अच्छा देखिए, एक चीज है, कई लोग इसको सुन के घबरा जाते हैं कि हैं वो अपना सारे जो है अपनी जो, एक मिनट मादी थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, मैं वो ट्रांसलेशन पढ़ रहा था। हाँ जी, कि वो अपनी सारी संपत्ति को त्याग देता है। अरे बाप रे, ये तो नुकसान हो जाएगा। तो लोग तो भक्ति छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं 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 भैया, बड़े मुश्किल से कमाया है। तो यहाँ भगवान का मतलब ये नहीं है। हमने कई बार ये बारे में डिस्कस किया है कि
अपनी संपत्ति को त्यागना मतलब ये नहीं है कि सब चीजें अब आप छोड़ दीजिए, आपके पास कार है तो आप छोड़ दीजिए, अच्छा घर है तो छोड़ दीजिए और हिमालय चले जाइए, नहीं। मतलब ये है कि चेतना जो है बदल जाती है, उस वो आदमी ये समझ जाता है कि ये सब जो भगवान ने मुझे दिया है, ये इसको मैं अच्छी तरफ यूज करूं और भगवान के कार्य के लिए यूज करूं। तो और भगवान का कार्य मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सिर्फ भगवान के लिए करेंगे, भगवान के लिए ही करना है, लेकिन अपनी चेतना को चेंज कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर आप लोगों के आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोगों के बच्चे हैं, तो बच्चों का ध्यान रखना ये भी एक भगवान के लिए कार्य है, भक्ति है। कैसे देखिए भक्ति है? क्योंकि वो भी तो जीवात्मा है ना। जब आप बच्चों का ध्यान रखते हैं तो आप उनको भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करवा रहे हैं, तो ये भी एक भक्ति है। उनका ध्यान रखना, उनको प्रॉपर पढ़ाना, उनको प्रॉपर शादी करवाना भी भक्ति है। देखिए कैसे आप लोग बोलेंगे कि ये कैसे, ये लोग नॉर्मली हम लोग बातें डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये भी कैसे देखिए, राइट टाइम पे शादी करवा देना, ये मैं एक सन्यासी से सुन रहा था, राइट टाइम पे शादी करवा देना भी एक बहुत अच्छी बात है। नहीं तो देखिए बाद में जो है दिमाग भटकता है, इधर भटकता है, उधर भटकता है, और एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है आपस में दो लोगों को, क्योंकि वो अलग तरीके से आ रहा है, ये अलग घर से आ रहा है। तो जब ये जो राइट टाइम पे जो जब होता है, तब आदमी एक दूसरे से एडजस्ट कर सकता है, आदमी एक दूसरे को समझ सकता है। देखिए इसलिए पुराने जमाने में जो था, जल्दी लोग एज में शादी करवाते थे, पर आजकल के लोग जो है इसको गलत बताते हैं, पर गलत नहीं है। बल्कि आप उल्टा देखिए, अगर हम लोगों से पूछें जो बोलते हैं इतनी बड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, तो एक तो बड़े स्टबन हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, वो अपने दिमाग लेके आता है, ये अपना दिमाग लेके आएंगी मैडम, बड़ा मुश्किल हो जाता है सेट करना, है ना। आप सब लोग जानते होंगे, प्रैक्टिकल बात कई बार बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सब जानते हैं। इसलिए तो हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा था कि बच्चों का ध्यान रखना ये भी एक भक्ति है। अपना शरीर का ध्यान रखना भी एक भक्ति है, क्योंकि अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो आप भजन कैसे करेंगे? अगर सर दर्द ही रहेगा, पेट दर्द खराब रहेगा, तो भजन भी थोड़ा टाइम बंद हो जाएगा, सेवा भी नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीजें तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का सिर्फ रखता है, अपना करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप खाना ढंग से नहीं खाएंगे, जैसे हमने डिस्कस किया, हर चीज आप प्रॉपरली यूज कर सकते हैं भगवान के। ये मतलब है कि आप चेतना जो है आपकी बदल जाएंगी। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप भक्तों को ट्रैवल करवाइए अगर चांस मिले तो, है। और यही नहीं कि अब आप बोलेंगे अगर भक्त नहीं है तो भक्त नहीं है तो आप भी तो ट्रैवल करते हैं, तो आप भी तो भक्ति कर रहे हैं, तो इस तरह से आप भी उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि अपने माइंड और इंटेलिजेंस मतलब चेतना और दिमाग को इस तरह से भगवान में लगा देता है जो भक्त होता है, कि वो अपनी प्रोप्राइटरशिप छोड़ देता है, इन द सेंस कि वो समझ जाता है कि मैं जो प्रोप्राइटर है एक्चुअली वो भगवान है। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम आगे और चैप्टर्स में आएंगे, कि भगवान बता रहे हैं कि इंसान जो है वो वैसे भी प्रोप्राइटर नहीं है। थोड़ा सा हम इस बारे में अभी भी बात कर सकते हैं, समय है। कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा घर है ना। लेकिन एक बार बीरबल और अकबर की स्टोरी आती है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि बीरबल ने एक बार पूछा कि इससे पहले किसका था, तो उन्होंने बोला मेरे दादा का था। उससे पहले किसका था, तो बोला मेरे परदादा का था। और बोला इससे पहले ये घर किसका था, तो बोला वो उनका होगा, पिता का होगा। तो उन्होंने बोला अच्छा, और अब इसके आगे किसका होगा, तो बोला मेरे बेटे का होगा। और बीरबल ने पूछा फिर आपके बेटे के आगे किसका होगा, तो बोला मेरे और आप पोते का होगा। तो बोला और उसके आगे किसका होगा, तो बोला फिर उसके उसके बेटे का होगा। तुम ये मेरे से प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? तो बीरबल ने बोला तो फिर आप प्रोप्राइटर कैसे हो गए ये बताइए, है ना। ये तो आगे से आगे चला जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और पीछे से हो रहा है, तो फिर आप प्रोप्राइटर कैसे हो गए? तो आपको आपके पास एक टेम्पररी प्रोप्राइटरशिप है, पूरे आप प्रोप्राइटर नहीं हुए, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि हम लोग जो है अटैच हो जाते हैं चीजों से कि ये मेरा है ना। तो यहाँ पे जो है भगवान को प्रोप्राइटर समझ के हम उनके प्रॉपर्टी की सेवा कर रहे हैं, हम उनकी प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहे हैं। हमें जो भगवान ने प्रॉपर्टी दी है हम उसका ध्यान रख रहे हैं और हम उनको यूज कर रहे हैं। तो ये इस सेंस में हम लोग ये श्लोक जो है समझ सकते हैं। तो फिर जब हम इस तरीके से करते हैं तो भगवान कह रहे हैं ही इज नॉट अफेक्टेड बाय सिंफुल रिएक्शंस, क्योंकि जब हम यही जानते हैं कि सब कुछ भगवान का है और हम भगवान की सिर्फ सेवा कर रहे हैं, तो फिर हमारे पे रिएक्शंस, बुरे रिएक्शंस कैसे आएंगे? क्यों? क्योंकि हम हर चीज जो है
ये सोच के करते हैं कि क्या ये भगवान को प्रसन्न करेगा कि नहीं करेगा। जब हमें पता लग जाता है कि कोई चीज भगवान को प्रसन्न नहीं करेगी तो हम नहीं करेंगे, और जब हम नहीं करेंगे तो बुरा अविकर्म नहीं होगा, अकर्म हो जाएगा, तो फिर उसके रिएक्शन नहीं आएंगे। इस हिसाब से जो है हम जो है पापों से मुक्त हो जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ेंगे, 22वें पे आ जाइए। यद्राच लाभ संतुष्टो द्वंद्वतो विमत्सरः समासिद्धव असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ऐसे ज्ञानी माता जी आगे ले लीजिए। हाँ जी। जो स्वतः होने वाले लाभों में संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं, कभी बंधता नहीं। वही बात होगी जो अभी हमने किया कि जो भी है हमें संतुष्ट रहना चाहिए, हमारे पास जो भी है। देखिए ये एक बड़ी एक क्वालिटी है जो आजकल लोगों के पास नहीं है, कि संतुष्ट रहें, जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहें। ज्यादा काम भी करके कुछ मिलना नहीं है। आप ट्राई कर लीजिए, क्या बोलते हैं वो, क्या है वो कहावत कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ मिलना नहीं है, यही है ना, या कुछ और है, वक्त से पहले और कुछ ऐसे दुकानों पे लिखा होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए जो भक्त होता है वो जानता है कि हम ऐसे कर्म करके आए हैं, हमें भगवान उतने ही हिसाब से मिलेगा, देंगे, है ना। उससे ज्यादा आप ट्राई कर लीजिए, नहीं आएगा, और अगर आएगा तो फिर वो चला भी जाएगा, वो आपके पास परमानेंट नहीं रहने वाला। इसलिए आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे अब आप देखिए कई लोग जो है बड़े घंटे घंटे काम करते हैं, रात को भी घंटे लगे रहते हैं और काम करते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप कर्म के फल देने वाले से चीटिंग कर सकते हैं कि मैंने ज्यादा काम किया तो मेरे को अब ज्यादा पैसा मिल जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। तो कोशिश कीजिए कि जैसे अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो जो आपको 14 घंटे या 15 घंटे में मिलने वाला था वो आपको 8 घंटे में भी मिलेगा, क्योंकि आपने आपने ये तय कर लिया कि मैं इतना ही करूंगा। तो जो आपके कर्मों के फल है वो 8 घंटे में ही आएंगे। तो आप बोलेंगे फिर 14 घंटे में कैसे आते हैं जब मैं सर्विस करता हूँ तो ज्यादा काम करता हूँ। तो वो ये होता होगा कि जो आपको 8 घंटे में मिलना था वो एक्सपेंड हो जाता होगा 14 घंटे में, क्योंकि आपने 14 घंटे काम करने की डिजायर करी है। तो ये है। लेकिन किस्मत से ज्यादा मिलना नहीं है, इसलिए इसलिए ईर्ष्या, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ईर्ष्या करके कोई फायदा नहीं है कि इसके पास इतना बड़ा घर क्यों, मेरे पास इतना वो क्यों। क्योंकि क्योंकि हमने उस तरह से कर्म किए, हमें उतना ही मिलेगा जो हमने किया है। उसने अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए उसको अच्छा वो मिल गया। जैसे आप देखिए एक हॉस्पिटल में किसी को क्या इंजेक्शन दिया जा रहा है और दवाई दी जा रही है, और किसी को क्या इंजेक्शन दिया जा रहा है और क्या दवाई दी जा रही है, क्यों सबको एक ही क्यों नहीं, है ना? क्योंकि उसकी बीमारी अलग है और आपकी बीमारी अलग है। तो आपकी बीमारी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जा रही है और उसकी बीमारी के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दी जा रही है। तो वैसे ही जो हमने कर्म, जो जिसके पास अगर बहुत पैसा है समझिए तो उसके उसके कर्म है, और हमारे पास अगर कम पैसा है तो हमने अपने कर्म किए, है ना। तो इसमें क्या है, पर हमें एक चीज और भी सोचनी चाहिए संतुष्ट रह के कि जितना हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए, है ना। हमें ये नहीं पता कि दूसरे आदमी के पास और कोई तकलीफ होगी। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले देखा कि एक मेरा एक मित्र है। तो वो बहुत हमेशा हंसता है, और हमेशा हंसता रहता है और बड़ा पीसफुल लगता था। और सेवा के लिए भी हमेशा आगे आता था। तो मैं सोच रहा था कि ये एक पहला लड़का है जो मैंने देखा है कि उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि पर ऐसा कैसे हो सकता है जब भगवान कह रहे हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड है और मटेरियल वर्ल्ड में सबको 3 तरह के दुख हैं। या तो किसी से दुख आता है, या अपना शरीर दुख देता है, मन दुख देता है, या देवी देवता दुख देते हैं। तो कोई तो दुख होगा ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने पता नहीं, बॉडी भी उसकी बहुत अच्छी है, दिमाग भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी थकता ही नहीं है, करता ही जाता है करता ही जाता है। जैसे वो इंडिया में ऐड आती है ना ड्यूरासेल की, कि वो सरदार की ऐड आती है कि यार तेरी बैटरी डाउन नहीं होती कभी। तो बिल्कुल वैसा ही मैं सोचता था कि तेरी बैटरी कभी डाउन क्यों नहीं होती,
पर अभी रिसेंटली उसने मेरे साथ शेयर किया, पर ऑफ कोर्स उसने मुझे ऐसे नहीं बोला कि आप शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर कोई प्राइवेट चीज होती है तो हम नहीं करते, पर उसने मुझे बताई ये बात, तो मैं बड़ा हैरान रह गया कि अ, उसके जब बर्थ हुआ था तो आई थिंक उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे उसे, वो उसको अबॉर्ट करना चाहते थे। तो उसको ये बात बाद में पता लगी, तो तब से उसका जो माइंड है बड़ा बड़ा डिस्टर्ब रहता है। प्लस मदर और फादर के आपस में जब घर में झगड़े चलते रहते हैं, उससे भी उसका माइंड बड़ा वो रहता है, बड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो इसलिए वो बोल रहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा टाइम मंदिर में ही बिताऊं। तो विच इज अ गुड थिंग एक्चुअली। देखिए भगवान के तरीके हैं आपको बुलाने के, कि अगर ऐसे नहीं आएंगे तो ऐसे तरीका निकाल देते हैं। पर मतलब मैं एक बात बता रहा था कि कैसे वो भी परेशान है। तो संतुष्टि जो है ये बड़ी मुश्किल चीज है, आजकल नहीं मिलती। कुछ ना कुछ तकलीफ हर एक को है, तो इसलिए हमें दूसरे को ये नहीं देखना चाहिए कि इसके पास ये क्यों है और इसके पास ये क्यों है। तो मैं ये सोच रहा था, ये एग्जाम्पल से मैं सोच रहा था कि थैंक गॉड भगवान ने मुझे अच्छे पेरेंट्स दिए हैं। तो उसमें मैं संतुष्ट हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पास इतनी बॉडी क्यों और मेरे पास इतने बड़ी बड़ी शोल्डर्स क्यों नहीं, या चेस्ट क्यों नहीं, या बाइसेप्स क्यों नहीं। मेरे पास जो है मैं संतुष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा उसके पास वो नहीं है जो मेरे पास है ना। मेरे पास अच्छे माता पिता हैं, और आप सब लोग हैं, देखिए सब फैमिली की तरह हैं, पर उसके पास वो नहीं है, इसलिए वो ढूंढता हुआ आ रहा है। इसलिए संतुष्टि जो चीज है वो बड़ी मुश्किल हो गई है आजकल। हमें संतुष्ट रहना चाहिए ये सोच के कि भगवान ने जो मुझे दिया है वो हो सकता है दूसरे को ना दिया हो, इसलिए मैं संतुष्ट रहूं। तो यहाँ पे भगवान जो है ये बात बता रहे हैं कि वो संतुष्ट रहता है और किसी से एनवी, मतलब कि किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तो संतुष्ट रहेगा तो ईर्ष्या क्यों करेगा। और सक्सेस और फेलियर में भी जो है वो समान रहता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये मेरे अपने ही कर्म है, इसलिए किसी को और को दोष देके कोई फायदा नहीं है। और इस तरह से जो है वो गलत एक्शंस नहीं करता। क्योंकि आप देखिए कई बार ईर्ष्या ऐसी चीज है कि दूसरे को तंग करने के लिए आदमी गलत काम करता है और फिर उससे पाप करता है और उसके रिएक्शन आते हैं। जैसे आप सब लोगों ने बड़ी हिंदी की बड़ी फेमस मूवी आई थी हमारे टाइम पे, द बर्निंग ट्रेन। याद है आप लोगों को द बर्निंग ट्रेन? पता नहीं आप लोगों में से किसी ने देखी कि नहीं, सब लोग आप नए जनरेशन के हैं। किसी ने देखी है द बर्निंग ट्रेन हिंदी मूवी? कोई हाँ ना बताएगा कोई? हाँ देखिए है। अच्छा, एक आंसर आया। हाँ देखा जी, है। तो देखिए कैसे। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ देखिए देखी कैसे। हुई है, देखी हाँ है। जी, तो देखिए। हाँ जी, थैंक यू, अब जवाब आ गए, थैंक यू। तो देखिए कैसे कैसे एक आदमी को तकलीफ देने के लिए कैसे पूरी ट्रेन को आग लगा देते हैं। और कितने लोग, देखिए वैसे तो पिक्चर थी तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आई एम श्योर अगर ऐसा कभी होगा तो कितने लोगों को नुकसान होगा सिर्फ एक ईर्ष्या के लिए, है ना। तो अगर वो भक्त जो होता है वो जानता है कि मेरा क्रेडिट मुझे मिलना है, तो फिर ईर्ष्या करके क्या फायदा है ना। एक सन्यासी एक बात बता रहे थे कि आप समझिए कोई अच्छा काम कीजिए और अगर आपको कोई गुफा में भी छुपा दे, अंदर कोई केव करके गड्ढा करके ऊपर उसके ऊपर बिल्डिंग भी बना दे, अज्यूम कीजिए, फिर भी उसके बाद बावजूद भी जो क्रेडिट आपको मिलना है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपसे आपसे आपका कोई क्रेडिट खींच नहीं सकता, ये गारंटी है। अगर वो आपके साथ कुछ भी कर ले फिर भी आपका क्रेडिट आप ही को जाएगा। तो हमें ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है कि काम किसी और ने किया, क्रेडिट किसी और को जाना चाहिए और आपने क्रेडिट वो ले लिया। कई बार होता है जैसे आपने कोई अच्छा काम किया और हम बोलते हैं ओ मैंने किया वो। कोई जरूरत नहीं है, आपको मिलेगा आपका क्रेडिट। क्यों ना लोग आपको ना देख रहे हो, लेकिन भगवान देख रहे हैं, है ना। और भगवान सबके हार्ट में है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मेरे पास ऐसी बहुत स्टोरीज हैं, इसलिए मैं ये रियलाइज कर सकता हूँ प्रैक्टिकल चीजें, कि मेरा एक दोस्त है, वो एक बार प्रसाद बना रहा था। तो गुरु महाराज आए, एक्चुअली वो मेरा गॉड ब्रदर है, गुरु महाराज आए, हमारे जो गुरु महाराज हैं, और उन्होंने बोला अच्छा तुमने ये बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, क्या क्या मसाले डाले। तब उसकी जो है छुट्टी हो गई, क्योंकि वो बता ही नहीं पाया कि क्या मसाले डाले, क्योंकि उसने बनाया ही नहीं, है ना, एकदम पकड़ा गया। तो इसलिए हमें जो है ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका क्रेडिट आपके पास जरूर आ जाएगा। तो बस एक
फेथ की बात है, फेथ होना चाहिए कि, और इनफैक्ट आप देखेंगे कि दुनिया आपको बाद में और ज्यादा समझदार समझेगी कि ऑल्दो वो आपने किया था लेकिन फिर भी आपने अनाउंस नहीं किया और दूसरे को क्रेडिट ले जाने दिया, तो जब जब जो जितने भी मैच्योर लोग हैं वो बल्कि इनफैक्ट आपको ज्यादा ग्लोरीफाई करेंगे और भगवान भी देखिएगा आपको ग्लोरीफाई करेंगे, ये गारंटी है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं 22 में कि ही सेटिस्फाइड whatever comes with its own accord, is free from duality, no envy, कोई सक्सेस में फेलियर में he is not disturbed, and that way he is performing his actions। तो ये आइए आप 23rd पे चलेंगे, ये एक बहुत बढ़िया आने वाला है 23rd जो है, ये बहुत बढ़िया वर्ड्स है। देखिए, गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञान ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञ चारत कर्म समग्राम प्रविलीयते। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे क्रम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ओके, तो ये ब्रह्म में लीन हो जाना मतलब ये नहीं है कि हम ब्रह्म में, हम जो है ब्रह्म में लीन हो गए या भगवान में हम लोग मर्ज हो गए, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी वो कार्य करता है उसके कार्य और भगवान का डिजायर एक है, ये है इसका मतलब। ये नहीं है कि हम भगवान में लीन होने वाले हैं। जो जिस आदमी को ज्ञान हो जाता है वो भगवान में लीन हो जाएगा, हम भगवान में कभी लीन नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि ज्ञान, हमारे जो कार्य हैं वो भगवान के डिजायर पे ही चलते हैं। इसको कहते हैं कि उनका डिजायर और हमारे एक्शंस एक हो जाना, ये है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो जैसे भगवान ने पहले बताया कि वो एनवियस नहीं है, ड्युअलिटी में से वो हो चुके हैं और मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर भी उनपे काम नहीं करते, ऐसे लोग जो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में है, तो और वो भगवान के लिए कार्य करते हैं। तो अब मैं आपको एक बताता हूँ, एक स्टोरी, ये मैंने एक सन्यासी से सुनी थी कि साउथ इंडिया में ना अलवर्स होते हैं, जैसे हमारे हमारे नॉर्थ इंडिया और ऊपर की तरफ जो आप देखेंगे वहाँ पे संत महात्मा होते हैं, वैसे साउथ इंडिया में इनको अलवर्स कहते हैं। तो उनमें से एक अलवर था और उनके डिसाइपल जो थे, बहुत बहुत सारे डिसाइपल थे, उनमें से एक डिसाइपल के पास ये क्वालिटी की थी, जो भी बोलता था तो सारी दुनिया को जो है वो कन्विंस कर सकता था। और उनके पास एक ऐसा डिसाइपल था जो पानी में चल सकता था, और एक ऐसा डिसाइपल था जो आंख के साथ खेल सकता था। ऐसे बहुत डिसाइपल्स थे उनके पास। और देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप तपस्या करेंगे ना तो आप लोगों को भी मिल जाएगी सिद्धि। तो जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कोई जादूगर, कोई मैजिशियंस देखते हैं और बोलते हैं वाह 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 वाह, पर हम उनको भगवान समझने लगते हैं, पर ये सिर्फ सिद्धीज होती हैं और ये आप लोग भी आराम से पा सकते हैं। आप योगा कीजिए और ये जो उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, इसको आप मन को कंट्रोल कीजिए, आपके पास भी सिद्धियां आ जाएंगी। तो एनीवे, तो ये जो अलवर थे, जो संत महात्मा थे, ये एक मंदिर बनाना चाहते थे भगवान के लिए। तो पर लोग जो है पैसे नहीं देते थे। लोग बोलते थे हम अपने मतलब पे ज्यादा खर्चा करना और भगवान के नाम पे 2-5 रुपए दे देना। तो उन्होंने एक बार क्या सोचा कि भगवान के लिए कैसे कैसे ये मंदिर बनाएं, क्योंकि मंदिर भी बनाएंगे तो और ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकेंगे, ज्ञान पा सकेंगे, प्रसाद पा सकेंगे, भगवान की मूर्ति के दर्शन कर भगवान के दर्शन कर पाएंगे, जो मूर्ति के उस फिलहाल फॉर्म में है, भगवान आए हुए हैं, कीर्तन कर पाएंगे, गेट टुगेदर कर पाएंगे। तो उनके दिमाग में भगवान के लिए था, कि विचार पूरा भगवान के लिए था। तो उन्होंने एक डाकू के साथ जो है एग्रीमेंट कर लिया कि डाकू तो हमेशा चोरी करता ही था। तो उन्होंने बोला कि तुम अगर चोरी करोगे तो मुझे 70% तुम दे देना, मुझे दे देना, और 30% तुम रख लेना, तो तुम्हें भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। तो डाकू ने बोला ये बात तो सही है, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, ऐसा करता हूँ, ये एग्रीमेंट कर लेता हूँ। तो उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया और काफी लोगों को लूटा और वो पैसे लेके भगवान जो संत महात्मा थे उन्होंने मंदिर बना दिया। फिर बाद में अब उन्होंने ये देखा कि ये जो डाकू है ये बहुत ज्यादा तकलीफ देने लगा है, सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं ना, ऐसे करने लगा है, बोलता नहीं नहीं ये मंदिर मेरे हिसाब से चलेगा, मैंने पैसा दिया है, मैं जो बोलूंगा वही बनेगा। तो संत जो अलवर थे उन्होंने बोला कि अपने डिसाइपल को बुलाया, दोनों डिसाइपल को जो बहुत अच्छा बात कर सकते थे और जो जो पानी पे चल सकते थे, उनको बोला एक काम करो, समझ जाओ अब क्या करना है। तो उनके जो डिसाइपल थे वो समझ गए।
तो ऐसा देखिए, डिसाइपल की ये बात भी बड़ी होती है कि गुरु की सिर्फ बात करने के तरीके से समझ जाते हैं कि अब गुरु का आगे आदेश क्या है। ये भी एक गुरु और शिष्य के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है कि वो सिर्फ नजरों से समझ जाते हैं कि अब गुरु जो है क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम अब समझ जाओ आगे क्या करना है। तो उनके जो बोलने वाले डिसाइपल थे, जो बहुत अच्छा बोलते थे, उन्होंने बोला कि चलो, डाकू को बोला कि डाकू चलो आज हम ना पिकनिक पे जाएंगे, पानी के अंदर बोट में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो वो तो कन्विंस्ड हो गया 1 मिनट में, क्योंकि उनके पास शक्ति थी किसी को भी कन्विंस करने की। तो वो जब जा रहे थे, तो जो आदमी था जिसके पास पानी में चलने की शक्ति थी, उसने क्या किया, पर्पसली पानी में छेद कर दिया, बोट में छेद कर दिया। और जब बोट में छेद कर दिया तो जो डाकू था वो डूब गया और ये पानी में चल के आ गए। इस तरह से डाकू को डुबा दिया। तो वो सन्यासी ये बता रहे थे कि अगर अब आप और मैं ये करेंगे, अगर आप और मैं ऐसे प्लान्स बनाएंगे, तो हमें डेफिनेटली पाप लगेगा। किसी को मारना पाप लगेगा, है ना, किसी को लूट के पैसा लेना ये पाप लगेगा। लेकिन जो ऐसे लेवल पे लोग हैं, जो ऐसे संत महात्मा हैं जो सिर्फ भगवान के लिए सोच रहे हैं, है ना, वो जो है वो एक ट्रांसेंडेंटल स्थिति है, उसको हम कभी इमिटेट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे भक्त की बात बता रहे हैं कि जो मोड्स और मटेरियल नेचर से फ्री बिल्कुल हो चुका है, जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में है, ऐसे जो लोग हैं वो ट्रांसेंडेंस में मर्ज कर जाते हैं। पर आप और मैं करेंगे तो डेफिनेटली हमें उसके रिएक्शन आएंगे। क्योंकि देखिए, जब आप और आपका तो आप हो सकता है प्योर हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं ऐसा कोई कार्य करूंगा तो इसके पीछे अभी भी मेरी खुद का स्वार्थ होगा, है ना। कुछ थोड़ा क्यों ना थोड़ा स्वार्थ हो, लेकिन स्वार्थ होगा कि मैंने मंदिर बनाया, मेरा नाम हो जाए, कि देखो मेरे को नाम मिले। ऊपर से मैं ना दिखाऊं, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं तो होगा कि लोग सोचते होंगे देखो कितना अच्छा आदमी है, मैंने मंदिर बनाया, है ना, या मैंने इतने भक्तों को लेके आया, है ना कहीं स्वार्थ होगा। लेकिन जो ऐसे संत महात्मा होते हैं उनको 0% स्वार्थ है, अपने लिए बिल्कुल 0%, सिर्फ भगवान के लिए करना। जैसे 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 अपने गुरु महाराज की एक बात बताता हूँ कि वो शॉट नहीं लेना चाहते कोविड का, है ना, लेकिन अगर प्रीचिंग के लिए जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर ले लेंगे। तो देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं वो 0% स्वार्थ है उनका, अपने लिए वो नहीं लेना चाहते कोविड का इंजेक्शन है, लेकिन अगर प्रीचिंग करने के लिए, भगवान के कार्य के लिए, लोगों को भक्त बनाने के लिए अगर शॉट लेना पड़े तो वो ले लेंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, फिर वो जो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ भगवान। ऐसे वो सन्यासी ये बता रहे थे कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको स्वार्थ ना हो। जिसके पास मिनिमम स्वार्थ है वो है माँ। जो मदर होती है, या जो पिता भी आप कह सकते हैं, माता पिता, वही एक ऐसे इस मटेरियल वर्ल्ड में है जिसके पास मिनिमम स्वार्थ है, 0 नहीं है, मिनिमम स्वार्थ है। और उनके पास भी स्वार्थ है। देखिए कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, जैसे माता पिता कई बार बच्चों को पालते हैं, अच्छी तरह पालते हैं, कई बार नहीं अक्सर ही पालते हैं, पर ये स्वार्थ रहता है कि ये मेरा बच्चा है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा इन्हें फैसिलिटीज दूं। पर दूसरे के बच्चे को क्या आप सेम फैसिलिटीज देंगे? ना, आप में से हो सकता है कई दें, पर कितना टाइम देंगे, है ना। तो ये स्वार्थ है कि मेरा बच्चा। जैसे मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कहते हैं तुम इंजीनियर बनना। अरे भाई, वो इंजीनियर नहीं बन सकता, वो कुछ और बन सकता है, हो सकता है वो साइंटिस्ट बन सकता है, हो सकता है वो आर्टिस्ट अच्छा बन सकता है, पर उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। तो ये प्रेशर क्यों डाला जाता है? आप देखिए क्यों डाला जाता है, क्योंकि अपना उसमें स्वार्थ है कि मेरा बेटा इंजीनियर, मेरा बेटा साइंटिस्ट। क्योंकि जब आप 4 लोगों के बीच में खड़े होंगे, तो जब बात होगी कि आपका बेटा क्या कर रहा है, वैसे मेरा बेटा तो पुलिस ऑफिसर, आपका बेटा क्या कर रहा है, बोले मेरा बेटा इंजीनियर है ना। तो आप देखिए जी, इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ है। मैं लेकिन ईगो आ गई। लेकिन हाँ जी, ईगो ईगो आ गई। हाँ ईगो जी, मैं आ गया ना, जहाँ मैं आ गया वो फिर मैं अपना आ गया। गिराना। जी प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग हैं ऐसे, आई एम श्योर आप तो बता रहे हैं, लेकिन हम भी ऐसे कई लोग हैं, कई कई लोग पेरेंट्स। जी हम भी उनमें से एक हैं। मैं हम अब सब माता जी, सब हैं। उनमें। आपको जी ये जी तो आपका करेज है और आप में ह्यूमिलिटी है कि आप बोल रहे हैं, पर सब हैं, बिल्कुल सब बिल्कुल। हैं। क्योंकि जब भगवान बोल रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में सब जो हैं स्वार्थी हैं, बहुत बहुत सिर्फ संत महात्माओं ही हैं ऐसे जो दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं,
तो उसमें सब जी। है, मतलब मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, सब है, बिल्कुल जी। है ना। सब यही चाहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा हो। अच्छा, कभी आपने सुना है कि 4 लोगों के बीच में बड़ी पार्टी चल रही है और कोई बोल रहा है मेरा साइंटिस्ट है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है, मेरा बेटा मॉडल है? कि कभी सुना है आपने कोई बोल रहा है मेरा बेटा भक्त है? भक्त तो कभी नहीं नहीं सुना। सुनेंगे आप, नहीं नहीं, भक्त नहीं सुना है। है ना। वो छुपा जाते हैं, वो जी छुपा जी जी। जाते हैं मेरा बेटा, क्योंकि दूसरे क्या बोलेंगे कि आपका बेटा भक्त है, इस्कॉन ज्वाइन हाँ। किया है उसने। ओ अरे तेरी ये तो, क्या हो गया। है ना, ये क्या हो गया, इस्कॉन ज्वाइन किया है। जी प्रभु जी। है ना। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा बेटा दूसरों के लिए अपनी लाइफ छोड़ के बैठ गया है ना। बोलेंगे क्या लाइफ छोड़ के बैठ गया है, एंजॉय करो आप लोग, है ना। तो ऐसे मेरे भी कई रिश्तेदार हैं जो बोलते हैं कि पता नहीं क्या कर रहा है ना, सब छोड़ के बैठ गया, है ना। पर देखिए ये पर उनको ये नहीं पता है कि हम जो हैं ज्यादा कर रहे हैं मे बी उनसे। पर सिर्फ ये है कि ये एक ऐसी स्ट्रीम है जो अभी अप्रिशिएट उसमें नहीं आया, कि लोग ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते इसे, है ना। पर जब लोग समझने लगेंगे कि क्या क्या आप सब लोग कर रहे हैं, प्रीचिंग जब आप लोग करते हैं, आप लोग सब क्या कर रहे हैं, तब वो समझ जाएंगे कि कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं आप लोग। तब पेरेंट्स की भी छाती ऐसे फूल जाएगी कि मेरा बेटा भक्त है। हाँ। तो एनीवे पॉइंट मैं ये बता रहा था कि हम सब लोग जो हैं हमारे में कुछ ना कुछ स्वार्थ है, पर ऐसे जो लोग हैं जब वो ये कार्य करते हैं तो ये सिर्फ भगवान के लिए करते हैं, उनमें कोई स्वार्थ नहीं है। और हमें ऐसे कार्य, हमें उनकी चीटिंग नहीं कर लेनी चाहिए, हमें उन्हें इमिटेट नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं। चलिए आइए एक लास्ट हम करेंगे और उसके बाद हम रोक प्रभु देंगे। हरे कृष्णा हाँ जी, प्रभु। हाँ आई जी, जस्ट हाँ स्टॉप जी, शेयरिंग। हम ड्राइव कर रहे हैं तो मैंने शेयरिंग जस्ट स्टॉप किया। तो अगर कोई करना नहीं। है तो हाँ जी माता चलेगा। जी, एक और इसलिए कर लेंगे आज क्योंकि आगे अभी शुरू होने वाला है, एक सेक्शन शुरू होने वाला है जहाँ पे हम यज्ञों की बात करेंगे। तो ये जो है एक चीज मैं सिर्फ फाउंडेशन बिछा दूंगा आज, छोटा ही है, सिर्फ 2 मिनट और लगेंगे, और उसके बाद हम कल आगे करेंगे। नहीं तो 5-6 एक साथ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कल। तो छोटा ही है बिल्कुल, आप शेयर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, मैं सिर्फ समझा दूंगा यहाँ पे 1 मिनट में। ठीक है, वरना ज्यादा मैं बड़ा ट्राई नहीं है। करती हूँ। हाँ जी, मैं करती ये हूँ ज्यादा एक बड़ा नहीं सेकंड है। रुकिए। हाँ सिर्फ मैं फाउंडेशन बिछाना चाहता था कि आगे कल हम किस बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं तब तक ठीक है। रिसाइट करता हूँ वर्ड्स। 24वें पे हम आ गए हैं। हाँ ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अच्छा, एक सेकंड है प्रभु। सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं। 24 पर हाँ जी, चैप्टर 5 पे चले कोई नहीं माता गए जी, हम। अगर आप नहीं भी कर पाएंगे कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ 1 मिनट में, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मा वर्ड बहुत बार यूज किया गया है, तो ये ब्रह्मा वर्ड को हम अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए पहला अक्षर है ब्रह्मार्पणम। तो यहाँ पे देखिए क्या, कोई भी चीज जब हम करते हैं, समझिए कोई प्रोजेक्ट आप करते हैं, तो कोई अगर आप लेबर हैं उसमें, तो पहले आप क्या करते हैं, आप उसमें ऑफरिंग कर रहे हैं। ये अर्पणम मतलब क्या होता है, ऑफरिंग करना। आपने कोई चीज अर्पण करी, ऑफर करना। तो जैसे आप कोई भी काम ले लीजिए, तो आप उसमें स्किल कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी माता को देख सकता हूँ, माता जी को यहाँ पे, कि वो फूल बना रही हैं। ठीक है, तो ये एक ऑफरिंग है, अर्पण। इसमें आप क्या यूज कर रहे हैं, अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, इंटेलिजेंस यूज भाव, कर रहे हैं। अपना भाव और यूज कर रहे हैं, अपना भाव भगवान के प्रति यूज कर रहे हैं, उसको अर्पण कर रहे हैं वो भाव। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे स्किल भी यूज हो रहा है, एनर्जी भी यूज हो रही है, टाइम भी या यूज हो रहा है। तो कोई भी चीज जब आप करते हैं तो 5 चीजें होती हैं, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं और कल आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। और तो ये अर्पणम हो गया। कोई भी आप चीज ले लीजिए, इवन आप इंजीनियर भी हैं और आप कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो उसमें आप अपनी स्किल यूज करते हैं, है ना, कि मैं टावर बिछाऊंगा या कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया अर्पणम। ब्रह्मा का भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा हवीर। तो ये हवीर क्या चीज है, देखिए हवीर मतलब प्रॉफिट। कोई भी चीज हम काम करते हैं तो उसके पीछे प्रॉफिट भी होता है ना। जैसे जैसे सेम करते हैं कि मेरी मदर के अभी ये प्रॉफिट क्या होने वाला है कि इसमें से हार बन जाएगा, और हार बन जाएगा तो ये भगवान पे चढ़ जाएगा। तो ये प्रॉफिट हो गया कि भगवान जी को हार मिल गया, उनके हिसाब से प्रॉफिट ही है।
कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो प्रॉफिट ये है कि आपको पैसा मिलेगा और नाम भी होगा, ये है प्रॉफिट। तो ये हवीर हो गया, ठीक है। फिर भगवान आगे बोल रहे हैं ब्रह्मा अग्नौ। अग्नौ मतलब ये अग्नि। तो ये अग्नि मतलब क्या होता है कि जो भी डिफिकल्टीज हमारे काम के बीच में आती हैं, जैसे अगेन फिर से चलते हैं, मेरी मदर को हो सकता है बनाते समय पिन चुभ जाए, तो खून निकल जाए, तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई, है ना। या हो सकता है कि गलत हार की साइड बन गई, तो ये डिफिकल्टी आ गई। या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में फिर चले तो उसमें ये हो सकता है कि आपने कोई चीज बनाई पर फिर से गिर गई, ये एक डिफिकल्टी आ गई। या लेबर्स, बाकी लेबर्स काम पे टाइम पे नहीं आ रहे या चले गए, तो ये डिफिकल्टी आ गई। तो ये जो है ये डिफिकल्टी है। तो यहाँ पे अग्नि की तरह होती है डिफिकल्टी, जलाती है, हमें तंग करती है, तो ये अग्नि होगी। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अग्नौ। फिर भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मानो हुतम। तो ये ब्रह्मानो हुतम क्या है? ये भी एक प्रॉफिट की तरह है कि जो हमें मिलता है, जैसे हमें कुछ कुछ नाम मिलने वाला है या कुछ नाम ही समझिए मिलने वाला, तो ये हुतम हो गया, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं ब्रह्मावतेना गंतव्यम। तो ये गंतव्य क्या है? गोल। जैसे फिर से चलिए, मेरी मदर बना रही हैं हार। गोल क्या है कि हार बन जाएगा और भगवान को चढ़ जाएगा, ये भी एक गोल है, डेस्टिनेशन गोल आप कह सकते हैं। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पे चलिए, फिर से तो हम बोलेंगे कि भाई कोई टावर बना रहा था, समझिए मोबाइल का टावर बना रहा था, टावर कंप्लीट हो गया, ये गोल डेस्टिनेशन। और ब्रह्मा कर्म समाधिना। समाधिना मतलब समाधि। तो जब आप कोई भी काम करते हैं, कई बार समाधि लग जाती है। समाधि इन द सेंस कैसे? आप इतना काम करते हैं कि भूल ही जाते हैं कि खाना भी खाना था, कई बार भूल ही जाते हैं कि बाथरूम भी जाना था। कई बार होता है, आप देखिए कई बार कोई बहुत पुराना फ्रेंड मिल जाता है तो हम बात करते करते भूल ही जाते हैं कि लंच टाइम हो गया, इतना मगन हो जाते हैं। तो ये है समाधि, है ना। तो यहाँ पे भगवान ने 5 चीजें बताई हैं, अर्पणम, हवीर, हुतम, गंतव्यम और समाधि। तो ये 5 चीजें कोई भी चीज में होती हैं, कोई भी ट्राई कर लीजिए आप। लेकिन भगवान यहाँ पे ब्रह्मा का वर्ड यूज कर रहे हैं। ब्रह्मा मतलब क्या कि स्पिरिचुअल। ब्रह्मा के बहुत मतलब होते हैं। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं, ब्रह्मांड भी हो सकता है, जो भगवान के नाखून में से जो लाइट निकल रही है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड हो सकता है, ब्रह्मा जी हो सकते हैं, और ब्रह्मा मतलब स्पिरिचुअल भी होता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो आदमी भक्त होता है वो ये सारी चीजें भगवान को अर्पित कर देता है। ये है, इसलिए हर चीज में ब्रह्म 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 ये लगा हुआ है। हाँ, तो अब आइए हिंदी में वो पढ़ेंगे तात्पर्य कि यहाँ पे क्या है। अगर माता जी ने शेयर कर दिया कि जो व्यक्ति कृष्ण भाव अमृत में पूर्ण तरह लीन है, रहता है, देखिए जो फुल्ली इंगेज्ड हो गया है भगवान की सेवा में, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। मतलब वो जो भी करता है, जो वो करता है, और जो भी वो अर्पण भी कर रहा है, वो सब भगवान के लिए कर रहा है। ये है एक फाउंडेशन। अब हम कल बात करेंगे कि कैसे ब्रह्मचारी एक हवन की तरह, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लाइफ को हवन की तरह कैसे कंपैरिजन हो रहा है कि ब्रह्मचारी जो है वो कैसे अपनी लाइफ को हवन में अर्पित करता है, एक गृहस्थ कैसे करता है। ये सारी चीजें जो है हम कल करेंगे। और हवन का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि देखिए हवन में एक अग्नि होती है और आहुति होती है जो आप चढ़ाते हैं, एक कर्ता होता है, एक प्रीस्ट होता है, और एक वो होता है जो चम्मच होती है जिससे आप चढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में, हम कौन है, हमारे लिए तेल क्या है, हमारे लिए स्पून क्या है, हमारे लिए प्रीस्ट कौन है, ये सारी चीजें जो है ये हम कल बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, पर मैंने एक जस्ट फाउंडेशन बिछा दी है अभी कि 5 चीजें जो है यहाँ पे हर कार्य में होती हैं। तो वो क्या चीजें हैं वो आज हमने डिस्कस किया, बाकी हम जो है कल करेंगे। एक सन्यासी के लिए क्या, कैसे हवन होता है, ठीक है ना। चलिए, अब अगर कोई किसी का प्रश्न या कोई कमेंट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक दिगंबर पांडे जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। कुछ प्रभु जी आप कहना चाहते हैं कुछ, या माता जी हरे कृष्णा आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा। चलिए सर हरे कृष्णा कह रहे हैं। आई थिंक उनको वो अनम्यूट नहीं करना आएगा, हो सकता है या वन ऑफ द वो रीजन। मामा जी है, उनको नहीं आएगा शायद कोई अनम्यूट बात नहीं, करना। कोई मामा बात जी नहीं, कोई आपको बात कुछ क्वेश्चन है? नहीं लगता है। कोई मैं बात पूछूंगी, अगर है तो कल पूछेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माता। चलिए,
आज के लिए सॉरी प्रभु जी, हमें कहीं जाना ही पड़ा, इसलिए आई हैड टू स्टार्ट कोई इन बात बिटवीन। कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए, और कोई कोई कुछ पूछना चाहते हैं जो आपने डिस्कस किया, या कोई अपना कुछ कमेंट देना मेरा एक चाहते हैं? क्वेश्चन है प्रभु 22 के ऊपर, हाँ जी, पर हम कल डिस्कस 22 करेंगे। आई आस्क यू टुमारो। 22 का जो है ना कि आप अपना कोई भी कार्य करो उसमें आपको क्रोध नहीं, मतलब लोभ नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन निकल, आप जवाब कल देना, आज नहीं, क्योंकि वी आर ऑन द रोड। पर तो माता जी, अगर और किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर हम जवाब भी दे सकते हैं। पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि हम तो कभी मानते ही नहीं प्रभु कि मुझे ईर्ष्या हो रही है, कभी नहीं मानते, राइट? तो वो हम नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ, मैं मेरे बारे में ही बात करूंगी कि मैं तो ईर्ष्यालु हुई नहीं बिल्कुल मुझे। पर ईर्ष्या करते करते हम कब ईर्ष्या से उसका अगला लेवल आ गया, हम गुस्सा भी करने लग गए, तो भी हम मानने को तैयार नहीं है कि हम ईर्ष्यालु है। तो इसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है माता जी। एक तो माता जी, सबसे पहला ये है कि जब आप एसोसिएशन में होते हैं और अपने सीनियर्स से पूछते हैं, तो सीनियर्स आपको बता देते हैं कि कब आप वो लाइन को क्रॉस कर गए हैं जहाँ पे ईर्ष्या आ गई है। एक तो ये बात है डेफिनेटली। और दूसरी बात है माता जी कि अगर आप जैसे कोई चीज को अगर आप होल्ड कर रहे हैं और दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, ये भी एक हो सकता है कि ईर्ष्या हो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, आजकल मैं यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कुक नहीं है तो मैं कुकिंग कर रहा हूँ। तो अगर अब मेरे से कोई पूछता है कि वैसे बहुत अच्छा खाना बनाया, क्या मसाले हैं, तो अगर मुझे ईर्ष्या होगी तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। पर अगर मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा, है ना। मन में ये सोच के कि मेरा क्रेडिट वो नहीं ले जा सकता, जो मेरा क्रेडिट है वो मुझे मिलेगा, तो इसलिए दे दो। तो ये तो मतलब थोड़ा बहुत अपने को भी आइडिया लग जाता है कि मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। प्लस दूसरे भी बता सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीनियर्स भी बता सकते हैं कि अब आप उस लेवल पे आ गए हैं। बाकी अगर और कोई अगर कमेंट देना चाहे, मतलब मैं तो अपने लेवल की बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जब मैं किसी की मदद नहीं कर रहा किसी चीज में, जो वो मेरे से पूछ रहा है, तो हो सकता है मेरे मन में ईर्ष्या हो कि शायद ये मेरे से आगे ना निकल जाए, है ना। पर उसकी किस्मत होगी तो वो आगे निकल जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको एक बड़ा फनी बताता हूँ। देखिए, मैं बता रहा था कि किस्मत की बात कितनी इंपॉर्टेंट है। कि एक बार मैंने बताया था आपको कि जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे हिंदी का एग्जाम जो है लीक हो गया था। मुझे हिंदी का एग्जाम मेरे दोस्तों ने आके रात को दे दिया और बोला कि ये ले, ये एग्जाम है, कल तू अच्छे नंबरों से पास होगा। अब देखिए, मेरे पास सामान आ गया, लेकिन क्योंकि मुझे फर्स्ट नहीं आना था, इसलिए मिलके भी मैंने पढ़ा नहीं और कुछ अच्छे नंबर नहीं ला पाया। तो कहने का क्या मतलब है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो वो होगा ही होगा, और अगर नहीं होना तो मदद करके भी नहीं होगा, तो फिर ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है ना। हमें दूसरे की मदद कर देनी चाहिए। और पर मैं ये बता रहा हूँ, पर बिजनेस में ऐसा थोड़ा समझदारी भी दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने सीक्रेट्स आपने दूसरे को दे दिया और दूसरे ने आपको एक्सप्लॉइट कर दिया। ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। बिजनेस में जैसे आज अगर पीयूष प्रभु ये बताने लगे कि मैं ये सामान यहाँ से ला रहा हूँ, आप लोग भी ले आओ, तो ये वो थोड़ा बिजनेस की बात एक अलग है ना। और एक नॉर्मल लाइफ में ईर्ष्या करना बात अलग है। ठीक है माता जी, लगता है कुछ सही जवाब था ये, थोड़ा बहुत सेटिस्फाई? नहीं, सही था प्रभु, सही था। आप थैंक यू। मदद करते जाइए माता जी लोगों की, और भगवान आपको वो और तो ऊपर चढ़ा नहीं, देंगे। वो सभी करते हैं प्रभु, मदद करती हूँ, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी पता नहीं आ भी जाता होगा, मुझे नहीं पता है। क्योंकि जब तुम पॉजिटिव होते हो, दैट मीन्स कि आपको कुछ तो क्रोध था, इसीलिए आप पॉजिटिव होते हो, राइट, किसी चीज में। तो ये सब बहुत माइन्यूट बातें हैं, मतलब एकदम यू हैव टू बी, आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपना अवलोकन करना पड़ेगा हर बार कि अच्छा इसका क्या मतलब था, मेरा ऐसा रिएक्शन का क्या मतलब था, मैंने ऐसा क्यों किया। तो आपको पूरा दिन आपका वो क्या अवलोकन करना पड़ता है। पर अच्छा है ना माता जी, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है और आप सोचते हैं इस बारे में। ये सोचना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। देखिए, क्यों भक्ति में से उनमें से एक कार्य है, क्यों? क्योंकि जब आप सोचते भी हैं तो आप क्यों सोच रहे हैं कि भगवान प्रसन्न नहीं होंगे इससे, राइट? यही सोच रहे हैं ना कि अगर मैं ईर्ष्या करूंगा तो भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे।
तो ये भी एक वन ऑफ द लिम्स ऑफ भक्ति है कि आप सोचते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सोल का काम है फीलिंग, थिंकिंग एंड विलिंग। तो आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे आगे बढ़ाऊं, तो ये एक अच्छी बात है। शुरुआत में टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। पर वैसे आप लोगों को बताना चाहूँ, माता जी ये इनकी ये एक, मुझे नहीं लगता ये अपने लिए प्रश्न पूछ रही हैं, किसी और के लिए पूछ रही हैं, क्योंकि ये इतनी सर्विस में एंगेज हैं, बिजी हैं कि ईर्ष्या का कहीं सवाल ही नहीं उठता। हमारे जो गुरु महाराज हैं इनसे बहुत प्रसन्न है, तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा होगा, पर जस्ट औरों के लिए हो सकता है पूछ रहे हो, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। चलिए बढ़िया। और कोई? थैंक यू प्रभु। और किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए, अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। आई थिंक आज मैं देख रही हूँ बहुत सारे ज्वाइन हुए हैं, काकी वगैरह, जो आनंद के काकी जी है वो सारे। हेमल भी आई है, हेमल अभी अच्छी हो गई है। सो बहुत सारे चलिए और बढ़िया। है, सबका नाम लेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, बट थैंक यू फॉर एवरीबॉडी, आप सबने फिर से ज्वाइन किया। चलिए अगर प्रश्न नहीं है तो फिर आप आज का हम सॉरी प्रभु, और ये आपका आप फीडबैक देते हो हमें, प्रभु जी को आप फीडबैक देते हो तो प्लीज कीप गिविंग योर फीडबैक। आपका अपना मंतव्य देते रहिएगा तो हमें इम्प्रूव करने का और चांस मिलेगा। प्रभु जी बहुत ही अच्छा करते हैं, पर ही ऑलवेज आस्क मी, कभी पूछते हैं कि माता जी कैसा था, किसी का कुछ क्वेश्चन था, कंसर्न था, कुछ कमेंट थी, तो आपकी कमेंट, आपके कंसर्न हमें इम्प्रूव करने में बहुत ही मददफुल रहेंगे। तो प्लीज आप करिएगा, आपका जो भी कंसर्न है प्लीज बताइएगा। ओके ओके। हरे कृष्ण। चलिए आज फिर हम यहीं रोक देंगे और 3 बार हरे कृष्णा जप करके क्लास को एंड करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वैसे मैं एक जाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। जब हम सब लोग हरे कृष्णा जप रहे हैं, किसी का आगे आ रहा है आवाज, किसी के पीछे आ रही है, किसी के बाद में आ रही है, ये इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि पूरा टाइम हरे कृष्णा जप रहे हैं, कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, विच इज वेरी गुड। एक जिसको सबका कहते हैं ना, अपना डॉल्बी अपना साउंड की रिदम तरह है। हो रहा है, या गूंज रहा है ऐसे। बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू हरि वेरी बोल, मच। हरि भगवान करे बोल आप लोग सब हेल्दी रहें। थैंक यू। जी। हरे कृष्णा। कल हरे मिलेंगे। कृष्ण जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा भगवान की जय, की भागवत गीता की जय, जय, भक्त वत्सल जय। प्रभु की जय, की आप सारे जय। भक्तों की जय। हरे कृष्णा। कृष्णा, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जूम हरे पे। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, बाय। हरे कृष्णा, हरे हरे। हरे कृष्णा।